Hello. So today, as board exams of class 10s are forthcoming, so आज today we'll discuss about the mathematics papers. One by one, each and every chapters, especially those who are in CBSE and ICSE board class 10 board exams is only few days here. So we'll discuss. We'll start with polynomials. It is a very important chapter, or our conversations or communication language will be your English, specifically simple English, okay, and I will translate in Hindi also for Hindi medium those who. So don't worry, these two, okay. So let's start. Tell me one thing, what do you know about polynomials? So first few year we'll discuss about the basics. For example, hmm, suppose a polynomial will be denoted by px here overall through your NCERT, or if you prescribe here ML Agarwal. Suppose a polynomial is square 5x plus this x cube plus 3x square plus 5x minus 3, I guess. Okay, 3x square 5x minus 3. So this is a polynomial. This is the maximum power is 3. So here n is 3. So it is a cubic equation. In latter stage, suppose a polynomial is suppose another polynomial gx. Suppose it is given gx is x square minus 2. So here this is called quadratic. We will discuss the quadratic individually also. Quadratic. This is cubic polynomial. Okay. And the maximum power. Suppose a quadratic is, suppose a polynomial is this x plus suppose 2. Power is 1. So it will be called linear. We'll draw the graph also. So this is quadratic polynomial. इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है, हाईएस्ट पावर, जो मैक्सिमम जो आपका पावर होगा उसको इट इज क्यूबिक क्वाड्रेटिक. नाउ बचपन से डिविजन एल्गोरिथम वी हम लोग सभी को वी नो द डिविजन एल्गोरिथम. ओके, सपोज समवन आस्क यू टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बट दिस पॉलिनोमियल. बचपन चाइल्डहुड डेज में हम लोग कैसे करते थे? ठीक है, तो लेट्स डू दैट. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब minus 3x square plus 5x minus 3. Okay, that's one. So first we'll multiply this thing x square. If you multiply this by x, we'll get x cube. So x into this x cube minus 2x. Achha, 2x here minus x cube. So minus 2x. 2 into x minus plus. We are doing the divisions. Okay, this one cancel out. Minus 3x square plus 7x. Okay, now we have to multiply this thing by minus 3. See, if you multiply this thing by minus 3, you will get what? 3. See, 3x square. Minus minus plus 6. So that is plus
minus, so that's cancel out, 7x minus 6 and then minus 3, so that is 7x minus 9. We can't do anything because whenever, जब भी इसका पावर whatever remaining here, you can say remainder, इसका पावर इससे कम हो जाए, then you can't multiply. Okay, तो आई नो तुम लोग जो बचपन का सभी भूल चुके हो. देखो, दिस क्लास इज बेसिकली फॉर दोज हु आर वीक एंड दोज कुछ नहीं किया है, सो मैं इसीलिए सिखा दे रहा हूँ. ठीक है, देखो क्या करना है. पहले तुम एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर करो, क्या हो रहा है एक्स, तो इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई किया. अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो रहा है, माइनस 3x स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर, तो कितना हो रहा है -3, इसीलिए मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया इसको. सो नाउ नोमेनक्लेचर, क्या क्या इसका नाम क्या है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, this part 7x minus 9, this is called remainder. Okay, और इसको कहते हैं डिविडेंड. या मेन फंक्शन. तो देखो, हाउ विल आई राइट दिस फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये मैं ये कर दे रहा हूँ, बाद में बताओ, मुझे बता देना. ठीक है, सो देखो, जो एक्स क्यूब था, दैट इज एक्स क्यूब, जो व्हाट इज एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर 5x माइनस 3, 3x स्क्वायर 5x माइनस 3, दैट इज ये, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9, right? 7x minus 9. So this one. So that means dividend equals to divisor. This is called division algorithm. ये बाद में भी काम आएगा. Divisor into quotient plus remainder. This is the इसको now if you want to write it and this is, so px, very important, px, divisor is suppose dx, quotient will write down q into x, all these are function of x, and plus rx. Okay, this is called division algorithm. यहीं से बहुत सारा questions you will get to see in the paper. So this is divisor, this is quotient, this is remainder. Sometimes remainder may be a numerical, may not be a function of x. This मतलब ये x से related होगा. See x, dx, उसमें भी x है, qx, that also contain x. Remainder, that is also contain x. Okay. अच्छा, this is called division algorithm. Very important. Division algorithm. Okay. Now this is division algorithm. Okay, ये मैं I'm using this thing. ये यूज करते रहो. So एक चीज अच्छे से देखो अभी तो because we don't have enough time to know all the means derivation basic, but still I'm trying to ये क्योंकि जितना जरूरी है. Now then एक क्वेश्चन मैंने ये zeros ये तो उसके लिए suppose if you substitute x equals to 0 here, what will happen? Probability polynomial x equals to 0. Okay, what will happen?
here d of x will be 0 into quotient. You substitute x everywhere on both sides plus r x equals to 0. Okay, got it? When you substitute x equals to 0 or x equals to any number, suppose 0 or any number, suppose make this as here. Let me explain you to the NCERT connect here. Suppose same equation. So your gx equals to this. फंक्शन में gx क्या था? x स्क्वायर माइनस 2 gx और dx यू कैन से डिवाइजर. ओके, तुम्हें px से px को तुम dx से डिवाइड कर रहे हो, राइट? वेरी सिंपल. नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल कैलकुलेट x इक्वल, इसको 0 करो. सो इसका x वैल्यू निकालो. x स्क्वायर इक्वल्स टू 2. सो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस. नाउ इससे हम विल डिराइव द फैक्टर थ्योरम आल्सो. ठीक है, यहां तक समझ गए? अच्छा, नाउ व्हाट विल यू डू? सपोज ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. सपोज एक पॉलिनोमियल है px, पॉलिनोमियल है. नाउ यू आर डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को x माइनस एक फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो. दैट इज योर dx और gx. सो यू विल गेट ए क्वोशिएंट, राइट? एक क्वोशिएंट मिलेगा and you will get a, after all this you will get a rx. So how will you write px? You write px को कैसे लिखोगे? That is x minus a qx plus rx. ऐसे ही तो करोगे. हाँ, this is the polynomial. ये रिमाइंडर फंक्शन होगा, ऐसे लिखोगे. Now देखो, अब तुम सपोज तुम यहाँ पे if you substitute x equals to a here, अगर तुम x equals to a substitute करते हो यहाँ पे, तो देखो क्या होगा. a minus a q x equals to a into plus r, जैसे 0 किया था ना, yes, ऐसा हो रहा है. अब देखो इससे नेक्स्ट क्या आप करोगे? p x equals to a equals to 0 into something is 0. क्यों ये पार्ट जो भी हो, whatever it is, 0 into something is 0 plus r x equals to a. Okay. Now, very important part. If p x equals to a equals to ये 0 plus r x equals to a. अब देखो, if p, अब sometimes this will also become 0. So यहाँ पे मैं दो कंडीशन लिखता हूँ. 1, if अगर p x equals to a तुम्हारा डायरेक्ट 0 होता है, ओके. और सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ही सब क्वेश्चन होगा. If p x equals to a equals to r x equals to a, क्योंकि 0 लिखने की जरूरत नहीं. अगर ये होता है and it is नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो होता है तो that means when this equals to 0, so x minus a जो जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडर is a factor of px. px का x minus 1 एक फैक्टर होगा, मतलब फैक्टर में, दैट मीन्स अब x minus a से अगर तुम px को डिवाइड करते हो, इफ यू डिवाइड px बाई x minus a, कॉम्प्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर तुम्हारा 0 होगा. ठीक है, क्योंकि सब तो 0 है. और अगर तुम x minus a से px को डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडिंग px बाई x minus a, लेकिन वो 0 नहीं आ रहा है, समथिंग नॉन जीरो आ रहा है, सो देन x minus a will not be a factor. ये कभी
विल नॉट बी ए फैक्टर, फैक्टर नहीं होगा। एंड वॉट एवर इट विल कम, मैं क्वेश्चन करते करते समझाऊंगा, ये जो आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। सब्स्टिट्यूट करके एक्स इक्वल्स टू ए, क्वेश्चन करके समझ आएगा जरूर। ठीक है, करते हैं, समझा? दिस इज द डेरिवेशन। अभी डेरिवेशन करने का उतना टाइम नहीं है, पहला उससे ही करते हैं। ठीक है, समझिए एक बार, जस्ट गो थ्रू दिस। विल नॉट बी ए फैक्टर एंड रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर आर एक्स विल बी पी एक्स इक्वल्स टू ए फॉर दिस केस, ये केस में। तो कोई एक पॉलिनोमियल से करते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड दिस, ओनली दिस विल बी रिक्वायर्ड हियर, दिस टू कॉन्सेप्ट। यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन कॉमन फॉर मैं। तो देखो सीबीएसई में ही आया है। अच्छा, एक करते हैं, फिर उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन लेके करते हैं। तुम्हारा क्या था, योर जी एक्सिस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे तुम्हें डिवाइड करना क्या है, पी एक्स क्या है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। डिविजन मेथड में भी कर चुके हैं। डिविजन मेथड में x माइनस 3 था, यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x, तो ये टोटल हुआ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। सो 3 से किया 3x स्क्वायर प्लस 6, कितना था, 7x माइनस 9, राइट। देखते हैं रिमाइंडर यही आता है। अच्छा, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 0, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। सो दैट मीन्स इसका अगर तुम करोगे तो x प्लस रूट 2 और x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट 2, ये दो फैक्टर हो सकता है, ये और ये। अगर तुम देखो, अच्छा, तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू, तुम रूट 2 पुट करो, सपोज सब्स्टिट्यूट रूट 2, कितना हो रहा है देखो, रूट 2 होल क्यूब माइनस 3 रूट 2 होल स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करो ठीक से, 5 रूट 2 माइनस 3, देखो कितना हो रहा है, रूट 2 होल क्यूब, 3 टाइम्स रूट 2 का क्यूब मल्टीप्लाई करो, सो 2 रूट 2 होल स्क्वायर इज 2, दो बार रूट 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 इंटू 2 प्लस 5 रूट 2 माइनस 3, कितना हो रहा है देखो, देखो 7 रूट 2, देखो 2 रूट 2 5 रूट 2 7 रूट 2, इरेशनल ऐड होता है, इरेशनल के साथ रैशनल ऐड नहीं होता है, और रैशनल ऐड होगा 6 माइनस 9, ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, नॉन जीरो है, ऑब्वियसली नॉन जीरो। सिमिलरली तुम ये फाइंड करो, कैलकुलेट ये एक्स इक्वल्स टू, अगर इसको तुम जीरो करोगे तो इसको जीरो करोगे तो एक्स इक्वल्स टू रूट 2 होगा, इसको जीरो करोगे तो दीज आर कॉल्ड जीरोस। ओके, ये जो बता रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड जीरोस। जब तुम इसको जीरो से कैलकुलेट करते हो, इसलिए जीरोस बाय रूट्स कहते हैं, जीरोस और यू कैन से रूट्स और जीरोस। माइनस रूट 2, इसको जीरो कर दो, इक्वल्स टू जीरो करके देखो, माइनस रूट 2 होगा एक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस रूट 2 होल क्यूब, एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, सो दैट इज 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस रूट 2 माइनस 3, कितना हो रहा है कैलकुलेशन करके, माइनस 2 रूट 2, 3 टाइम्स माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 5 रूट 2 माइनस 3, है ना। अच्छा नहीं, ये तो माइनस 6 ही होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7 रूट 2 माइनस 9, देखो ये हो रहा है कि नहीं,
कैलकुलेशन ठीक से करो, -√2 सब्स्टिट्यूट करो। सो एक चीज मैंने क्यों ये समझाया फंडामेंटल्स के लिए, उसके बाद तो विल डू द ओनली द क्वेश्चंस। सो नाउ you can understand that whenever you substitute, whether it is x equals to √2 or whether it is x equals to -√2, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो एक बार 7√2 -9 आ रहा है, एक बार -7√2 -9 आ रहा है। बोथ ऑफ देम आर नॉन जीरो। सो दैट मीन्स ये जो पार्ट एक्स स्क्वायर दैट इज dx डिवाइजर, और यू कैन से g -2, or you can say x plus √2, x minus √2. Both of the factors, these are not factors. Completely divisible तो नहीं हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे भी डिविजन से भी चेक करो, यहाँ पे लास्ट में x इक्वल्स टू √2 पुट कर दो, यही आएगा। और √2 अगर डायरेक्ट पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो तो भी। सो नॉट फैक्ट, दे आर, दीज आर, देखो ना नॉन जीरो आ रहा है तो मैंने कहा जीरो होगा तो देन इट विल बी अ फैक्टर। दीज आर फैक्टर्स, सॉरी नॉट फैक्टर्स, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है विच इज नॉन जीरो, नॉट फैक्टर्स। अगर वो फैक्टर्स होता, इफ दे आर फैक्टर्स देन दिस शुड बी जीरो, एंड देन अगर जीरो हो जाता देन व्हाट विल हैपन, देन वी विल से दैट दीज आर द रूट्स, देन दे विल बी कॉल्ड, I will explain those questions also. वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। They are not factors, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा। So this is your divisor, this is your dividend, this is your quotient, this is your remainder. Okay, this is factor theorem as well as doing the simultaneously. यही करना है। तो देखो एक क्वेश्चन करा दे, अच्छा सपोज एक पॉलिनोमियल है, सपोज ए पॉलिनोमियल इज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल px, px क्या है, 3x to the power 4 पॉलिनोमियल है x³ -3x² plus x plus 2. When you divide this by a polynomial gx, your quotient is x minus 2, or your remainder is minus 2x plus 4. तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें gx फाइंड करना है। हाउ विल यू फाइंड? तो देखो, दिस इज योर क्वोशिएंट qx, दिस इज योर rx रिमाइंडर, ये क्या है, ये तुम्हारा डिवाइजर्स है, और ये तुम्हारा px है। नाउ वी नो द फॉर्मूला, राइट। ये मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, -2x + 4 था ना। देखो px क्या है, px इज qx इंटू gx या dx वटेवर इंटू rx। px देखो क्या है, x³ 3x² plus x plus 2। qx क्या है, qx इज x minus 2, gx तुम्हें पता नहीं है, प्लस rx क्या है, -2x plus 4 I guess। समझ गए? अब देखो क्या करना है, बहुत यहाँ पे तुम डिफरेंट तरीका यूज कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। ये जो रिमाइंडर है rx, इसको पूरा इस तरफ ले जाओ, x³ -3x² plus x plus 2
plus 2x minus 4 that is equals to x minus 2 into gx. So x cube minus 3x square plus 3x minus 2 equals to x minus 2 gx. तुम्हें ये gx या डिवाइजर ही तो कैलकुलेट करना है, तो सिंपली ये पॉलिनोमियल को x से -2 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज ऑलरेडी बहुत सारा प्रोसेस है. ठीक है, देखते हैं. एक्स क्यूब सिंपल 3x स्क्वायर 3x माइनस 2 x माइनस 2 से डिवाइड करो, कितना है? फर्स्ट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवीजन करना है, प्लस 3x. सो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस कैंसिल प्लस x माइनस 2, सो प्लस 1 x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल आउट 0. देखो रिमाइंडर तो तुम्हारा 0 ही आ रहा है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल ही है, ऑब्वियस थिंग. तो दैट मीन दिस विल बी योर gx. ये तुम्हारा gx और इक्वल से डिवाइजर था. अच्छा, जीरो रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं, समझिए ऐसे करना है. और देखो विल कंप्लीट नॉट ट्राई टू कंप्लीट ऑल द नेसेसरी. अच्छा, यहाँ पे एक है. अच्छा, एक पेपर का क्वेश्चन देखते हैं. 25 का पेपर ये है. 25 एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू. ये एक पॉलिनोमियल है. अनदर पॉलिनोमियल सपोज जी एक्स, उसका पॉलिनोमियल क्या है? 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस से प्लस माइनस 6. तुम्हें पी एंड क्यू फाइंड करना है, पी फाइंड करना है. And it is given that the zeros means its roots, zeros of px equals to twice the zeros of, it is given, ये 2024 I think इस टाइप क्वेश्चन. See, simple based on your concept. Zeros of polynomial twice the zeros of gx. So our main purpose क्या होगा? इसका जीरो कैलकुलेट करते हैं, इसका जीरो और इसका जीरो डबल है. इसका जो जीरो, इसका जो जीरोस होगा, रूट्स, जीरोस मींस रूट्स बेसिकली, रूट्स जो सॉल्यूशन x का जो वैल्यू होगा वो इसका डबल होगा, विल बी द डबल ऑफ दिस. तो मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं. मिडिल टर्म फैक्टर पता है? तो 4 × 6 24. ठीक है, तो देखो मुझे 4 × 6 किया 24 में देखो 2 × 2 × 2 × 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 करके 5 होगा. माइनस करना है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस. सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर कर दो. क्वाड्रेटिक बाद में करेंगे क्योंकि वो चैप्टर पहले करते हैं. उसके बाद 8x प्लस 3x माइनस 6, सो दैट इज 4x कॉमन, x माइनस 2, 3 कॉमन, x माइनस 2, so that is x minus 2 or 4x plus 3. Okay, this. So zeros क्या होगा? Zeros means roots, तो इसको जीरो करो. So gx का जो zeros होगा that will be 1:2, another will be -3/4. होगा कि नहीं? एक बार चेक कर.
चेक इट। देख x माइनस टू तुम्हारा x माइनस टू जीरो तो फैक्टर है वो, उसको जीरो करना है, x इक्वल्स टू 2 होगा, और तुम्हारा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, सो 4x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 3/4, है कि नहीं? तो 2 और माइनस 3/4 हुआ, इसका जीरो। नाउ देयर इज ए, समझिए, देखो जीरोस रूट्स वट एवर यू से। अच्छा अब देखो 2 और माइनस 3/4, अब देखो 2 और माइनस 3/4, इसका जो जीरोस होगा, बस इसको जो भी फैक्टर में करते हो, हाँ, सो इसका डबल, सो दैट मीन्स px का जो जीरो होगा, एक था मेरा 2 तो 4 होगा, एक 2 का डबल 4, और एक होगा माइनस 3/4, तो उसका डबल दैट इज माइनस 3/2, अंडरस्टैंड? तो देखो, तो दैट मीन्स एक फैक्टर होगा x इक्वल्स टू 4 एंड, और दूसरा फैक्टर होगा x इक्वल्स टू माइनस 3/2, सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? देखो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, नहीं समझे ना? उसका जो जीरो, इस px का जीरो उसका डबल हुआ, so that means x minus 4 into 2x plus 3, that is equals to x square plus px plus q. So multiply करो, 2x square plus 3x minus 8x, simple multiplication, equals to this, x square plus px plus q. So 2x square minus 5x, simple multiplication, minus 12 equals to pq दोनों ही निकल जाएगा, x square माइनस 5/2x माइनस 6, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q। तो देखो, सो p इज एक्चुअली माइनस 5/2 और q कंपेयर करो माइनस 6, दिस इज योर आंसर, ठीक है? गॉट इट?